मेरे गुरु परिवार को बहुत बहुत नमस्ते, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को लख लख शुक्राना फॉर गिविंग मी अ चांस टू डू हिज सत्संग. I will share my experiences of Guruji and his teachings and lessons that he has given me. And maybe there is a message for somebody in the sharing. So the satsang I'll do will be in two parts. One will be जब गुरुजी चोले में थे, और second would be after his leaving the chola, and where I had the maximum learning. So in 2003, I had come back from Canada, and my mother took me to Guruji Maharaj. So Empire State में पहली बार गए तो बहुत loud शब्द चल रहे थे. There were a lot of VIPs or high flying people. And जब मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे गुरुजी बिल्कुल भी saintly नहीं लगे. He was wearing a very dashing chola, and it was not my idea of a saint. So anyway, there were a lot of doubts and question marks in my mind. Even so much कि जब लंगर देखा कि 4 लोग एक ही थाली में लंगर खा रहे हैं, तो I even thought कि भाई कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं. This is how you think when you have lived abroad and when you feel you know something. Well, then basically after some time, I wanted to test Guruji, and I thought to myself that a few days had passed, and I thought to myself कि Guruji मुझे कहाँ पहचानेंगे. I had met him for a few seconds. He did namaste, and that's about it. So anyway, I wanted to test him. So I thought, let us go and see if he's able to recognize me or know anything about me. So after a few days, I went to Empire State, and शब्द चल रहे थे, लंगर हो गया. Towards the end, गुरुजी ने मेरे को इशारा किया और बोला आई. हाथ से इशारा किया और बोला आई. मैं गुरुजी के पास चला गया. गुरुजी ने मुझे बोला जाएं, तो मैं जाने लगा. तो गुरुजी ने मुझे जोर से बोला ठहरी, तो मैं रुक गया. गुरुजी ने एक अंकल जो गुरुजी के चरण दबा रहे थे उनको बताया, अंकल ਤੈਨੂੰ पता है ये अग्रवाल ਦਾ ਮੁੰਡਾ है, ये सैनिक फार्म ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ है, ਇਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ है, ਇਹਦਾ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ फैक्ट्री है. And he narrated my entire biodata. I was very shocked and surprised, since I was full of doubts कि गुरुजी मुझे ना तो जानेंगे ना पहचानेंगे. So Guruji cleared my doubts, and so it was the first kind of interaction with Guruji, real interaction with Guruji. मैं घर आया, मैंने मॉम से पूछा कि आपने गुरुजी को मेरे बारे में कुछ बताया था. तो मॉम सेड, बेटा गुरुजी ज़्यादा बात नहीं करते, and so no, and the only thing people know about is that you had lived abroad. So this was the beginning of my education through Guruji. उसके बाद गुरुजी ने मेरे थॉट्स बहुत बार पढ़े, as in thoughts which were absolutely personal, which not even my family would know. And I realized कि गुरुजी को सब पता है. And to the point that I understood that Guruji has supernatural powers. So
उसके बाद हम लोग वहाँ पे सत्संग सुना करते थे. So Sangat used to share their experiences about their medical illnesses and cures. उसमें इतनी लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां और गुरुजी क्योर करते थे, और संगत जो है इतनी सच्चाई से और इतने पेनफुली उसे बताती थी, that I could see the truth and I could see the soulful truth in their sharing, and to the point कि समझ में आ गया कि गुरुजी is extremely powerful. Well, I went to Germany for some work, and मेरे को वहाँ पहुँचते ही बैक में एक बॉयल हो गया, which was like a size of a, जैसे मटर होता है उससे भी बड़ा, and it was very difficult to walk. So I was in a big dilemma. I had to literally think of cutting short my program. Anyway, वहाँ पे हमारे एक कजन चाचा जी थे, तो फैमिली ने कहा आप उनसे एक बार चले जाओ and see what he can help you with. So I went to him. He took me to a doctor. डॉक्टर ने देखा, he gave me an ointment. कोई रिलीफ नहीं मिली. Anyway, I had to come back to India with the pain still there, and I went to a doctor. तो डॉक्टर ने देख के बोला कि जी ये तो ट्यूमर है और इसका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो एनीवे वी वर वेरी स्केयर्ड. डॉक्टर ने कहा जी ये फैल जाएगा, अदरवाइज प्लीज ऑपरेशन करिए. हम सेकंड डॉक्टर के पास गए, तो सेकंड डॉक्टर ने कहा आप ये ऑइंटमेंट लगाओ, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं. एनीवे, सो इन द इवनिंग वेंट टू गुरुजी. तो जब लाइन में खड़े होते थे, बारी आती थी बात करने की गुरुजी से या उनसे आज्ञा लेने की, तो गुरुजी को हल्का सा मैंने बोला, गुरुजी मेरे पीठ में, मेरे बैक में बॉयल, बस इतना सा बोला था. गुरुजी ने मेरी बात को काट दिया और बोला करेले का जूस पियो. तो गुरुजी ऑलरेडी न्यू माय प्रॉब्लम विदाउट इवन टेलिंग हिम. तो गुरुजी वाज ऑल नोइंग एज ऑलवेज. सो एनीवे, राइटली सो करेले का जूस पिया 2-3 दिन, एंड द बॉयल वाज गॉन. जो बॉयल डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ट्यूमर है, गुरुजी के बोलने से कि करेले का जूस पियो, वाज गॉन. So this is our Guruji. Anyway, life moved on. एक बार मैंने कोशिश करी कि मैं अपने अंदर कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूं. So I started working on the 5 vices: काम, क्रोध, अहंकार, मोह, माया. And within a short period of time, about maybe 15-20 days, गुरुजी ने मेरे से बोला तुम तो इंसान बन रहा है. So what I am trying to say is that even whether that time or now, Guruji knows everything. So Guruji को पता था कि whatever effort I am trying to make, and he told me कि you are on the right path. So that's how loving our Guruji is. Sometime in 2006, so गुरुजी जो है एम्पायर स्टेट में कई बार साइड शेल्फ होता था, जो कि एम्पायर स्टेट ऑन द लेफ्ट साइड, तो वहां पे बैठा करते थे इन हिज शर्ट पैंट बिफोर द संगत. तो मैं थोड़ा सा पहले चला गया था, एंड आई जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू गुरुजी. तो गुरुजी ने रैंडमली मुझे कहा, तैनू पता है डॉक्टरों ने सैनिक फार्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
फिर कहते हैं गुरुजी तेनू पता है डॉक्टर ਨੂੰ कुछ नहीं आंदा। तो I said जी गुरुजी, and I was surprised कि गुरुजी मुझे ये क्यों बोल रहे हैं, what has I to do with all this? So anyway, बात हुई, खत्म हो गई। उसके बाद I used to run a factory in Sri Lanka. शायद 2006 की ही बात है, my dates might be up and down, please forgive me गुरुजी। So वहाँ पे हमारे पास हम लोग एल्यूमिनियम अलॉयज बनाते थे और ऑटो इंडस्ट्री को इंडिया में सप्लाई करते थे, लाइक टीवीएस एंड द ऑटो कंपनीज। सो मैंने वहाँ पे गुरुजी की एक फोटो है, वो गुरुजी की फ्लोर पे, प्रोडक्शन फ्लोर पे लगाई हुई। Well, we used to get materials from all over the world, aluminum materials, which were car parts and all the items made of aluminum. And there was a furnace which was used to do the chemical alloying of these aluminum metals. So वहाँ पे मैनेजर जो है केमिकल कॉम्पोजिशन देख के और फर्नेस जो कि 900 डिग्री के ऊपर मेटल को मेल्ट करती है उस पे वो डालते थे। सो मैनेजर ने केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करके और एक वर्कर को बोला कि भाई आप ये माल फर्नेस में चार्ज कर दीजिए, डाल दीजिए। एंड ऑब्वियसली द फर्नेस वाज एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दैट मटेरियल देयर वर सम एल्यूमिनियम के रूप में ही देयर वर सम रॉकेट्स और लाइव बॉम्ब्स व्हिच नोबडी वाज अवेयर ऑफ। एंड वर्कर्स ने वो लेके मटेरियल को 900 डिग्री सेंटीग्रेड वाली फर्नेस में चार्ज कर दिया। एंड देयर वर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 100 वर्कर्स ऑन द फ्लोर। सो यू कैन इमेजिन कि बॉम्ब को आपने 900 डिग्रीज में डाल दिया, सो देयर वाज अ बिग ब्लास्ट एंड वेयर द लिक्विड metal which is 900 degrees hot flew all around in the factory, in the floor, with workers present, and it was a very big accident. It was so serious that many workers lost their hands, legs, किसी का सिर खुल गया, किसी की आंखों में परेशानी आ गई। There was a big disaster. Lot of people, lot of workers went to the ICU. श्रीलंका में नेशनल न्यूज बन गई। इन द न्यूज़पेपर इट केम कि इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बॉम्ब्स फॉर LTTE। उस समय LTTE का वो था, काफी हॉरर था। सो एनीवे the army came, the Sri Lankan army and the bomb squad and all the security agencies came and they sealed our factory. हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए जो एक्सपोर्ट होने थे। वर्कर्स ने धरना शुरू कर दिया कि जी कंपनसेशन दीजिए फॉर द डैमेज एंड लॉसेस। इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया, सेइंग दैट अदर थिंग्स आर कवर्ड, बॉम्ब्स आर नॉट कवर्ड। हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिमिट थी वेयर दे हैड इन्वेस्टेड अलोंग विद अस and they had the lien of the factory and the material. तो आप ये देखिए कि so much of problem came instantly where हमारे सारे फंड्स फैक्ट्री में लगे हुए थे और वहाँ पे एक लोकल लॉयर ने बोला कि अगर इन वर्कर्स में से कोई भी मर जाता है, so Mr. Agarwal, you and your father will be both behind bars. So हम और परेशान हो गए, डर गए। फाइनेंशियल लॉस तो एक जगह था, then this second problem was also very big. Anyway, ये सब प्रॉब्लम लेके हम लोग very often दिल्ली और श्रीलंका वापस आया जाया करते थे। तो इस
प्रॉब्लम को लेके मैं गुरुजी के पास गया। मैंने गुरुजी के पास जाके बोला, इतना बोला था, गुरुजी श्रीलंका। गुरुजी ने मुझे बड़ी जोर से डांट लगाई। गुरुजी ने कहा, तेनू पता नहीं है गुरु नाल दसदे नहीं है, जा बैठ जाएंगे। और गुरुजी ने कहा, इनू चाय प्रसाद पिलाओ। आई फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि हमें समझ ही नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं थी। एनीवे, आई had चाय प्रसाद, आई फेल्ट वेरी पीसफुल। आप ये देखिए संगत जी कि इन द ICU not a single worker died and doctors were surprised। हैरान थे डॉक्टर्स कि ये क्या है कि इतनी सीरियस प्रॉब्लम के साथ भी nobody has died। जिन वर्कर्स को कंपनसेशन देना था which was running into crores, इंस्पेक्टर ने वो कंपनसेशन को 5 to 10% में सेटल कर दिया, which was totally illogical। मतलब it beats our logic, our intelligence, our anybody's logic or intelligence। इंश्योरेंस जो कि रिजेक्ट हो चुकी थी, मदर के दिमाग में आया, उन्होंने फादर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए। फादर वेंट देयर, इंश्योरेंस वालों ने बोला कि जी आपकी रिजेक्ट हो गई है, देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग, प्लीज गो। ही इज कमिंग आउट ऑफ द ऑफिस एंड ही गेट्स अ कॉल फ्रॉम सम सर्वेयर सेइंग कि व्हाट इज योर मैटर। फादर ने मैटर समझाया। ही सेड ओके, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। इन्होंने दोबारा एप्लीकेशन बनाई इंश्योरेंस की, और वो इंश्योरेंस was approved more than 100%। So all this was done by Guruji। मतलब आप ये देखिए कि it is totally illogical, totally out of any intelligence। You know, this is all the work of Guruji। गुरुजी ने हमको जेल जाने से बचा लिया, गुरुजी ने हमको रोड पे आने से बचा लिया। और हमारे को समझ ही नहीं थी, मुझे उस समय नहीं थी कि गुरु क्या होता है। एनीवे, 2000 दिस वाज, और बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स व्हिच आर देयर, बट आई विल ओनली शेयर द मेजर वंस। गुरुजी ने, हम बड़ी नासमझी करते थे बार बार, एटलीस्ट आई यूज्ड टू डू इट। गुरुजी दिमाग में आता था कि गुरुजी से ये पूछें, गुरुजी से वो पूछें। जब गुरुजी के सामने जाते थे तो गुरुजी यूज्ड टू ब्लैंक माय माइंड, याद ही नहीं रहता था क्या पूछना था। सो these were his actions and messages कि don't do all this, you know, I know everything, so there is no need। anyway, बाद में समझ में आई। Anyway, Guruji left his chola। It was very painful as for everybody। And in 2009, I became very sick, so sick that I had unexplained headaches, pain behind eyes, rashes, nausea, vomiting, stomach aches, you name it and I had it। And I went to doctors after doctors after doctors। I went through test after test after test, and there was no diagnosis। And इतना बुरा हाल हो गया था कि it lasted for nearly a year, and I had become suicidal। I was very disturbed। I thought this is the end of life and really wanted to suicide। एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई आपका डायग्नोसिस नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, मे बी यू हैव अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। तो मैंने भी सोचना शुरू कर दिया, मैंने कहा हो सकता है यार आई हैव अ मेंटल प्रॉब्लम, यू नो। सो मैंने कहा चलो साइकियाट्रिस्ट पे भी चल लेते हैं। आई वेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट ने पूछा आर यू स्ट्रेस्ड। ही सेड ये दवाई खा लो।
मैं साइकेट्रिस्ट के ऑफिस से बाहर निकला, जैसे कोई पानी गिराता है सिर पे, गुरुजी की कही हुई 2 लाइनें याद आई। तेनू पता है डॉक्टरों ने सैनिक फार्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तेनू पता है डॉक्टरों ਨੂੰ कुछ नहीं आंदा। And संगत जी, I realized what a foolish thing I have done. Guruji told me this and I have done totally contrary. I have gone to doctors. I गुरुजी का मंत्र जाप किया 15-20 दिन, उनके ब्लेस किए हुए लोटे से जल लिया। एंड संगत जी, 1 साल की सफरिंग वाज ओवर। दिस इज गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। once in the बड़े मंदिर, I was very disturbed and I had a difference with my family, something like that. तो वहां पे शब्द चल रहा था, मैंने आंखें बंद करी हुई थी, शब्द चल रहा था, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधक। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। एंड गुरुजी my mind went blank and as if I was unconscious, and I heard Guruji's voice saying, तू कुछा से डिस्टर्ब है, मैं लखा से डिस्टर्ब हूं। लोग आंदे हैं, शब्द सुनते हैं, चले जाते हैं, कोई अमल नहीं करता, अपने घर शब्द चलाया कर। Meaning, you are disturbed with few people, I am disturbed with lakhs of people. They come, listen to the Shabad and go back. No one implements it in their lives. Please play Shabad at your home. Anyway, मेरी आंख खुली, मैंने रियलाइज किया कि ये गुरुजी की कम्युनिकेशन थी और बस वो बात आई गई हो गई। I mean, as you know, as usual, we take things lightly. I took it lightly.